Hey guys, welcome back to Rahul Automation. So today we are going to learn about eval function क्या होता है and command line argument. And we have discussed in last video that about input and output statement. So now we are continue from the eval function. Okay, what is the eval function in Python? So let's start it. Eval function. What is eval function? Eval function is a function that take a string from the user and evaluate the result. It means eval function जो क्या क्या करता है, हमारा हमेशा जो इनपुट लेता है वो हमेशा ऑलवेज स्ट्रिंग में लेता है एंड देन उसको एग्जीक्यूट करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं फ्रेंड्स. suppose x equal to, we are taking eval function when we don't know the type of input user give to us. हमें कब यूजर किस प्रकार का इनपुट देने वाला है, that time we are using eval function. Okay, so हम just enter the value. Okay, तो हम एक वैल्यू लेते हैं यूजर के थ्रू and what to do? No. And check it is always taken a string. How we can convert this string into integer data type, boolean data type, list, tuple, that kind of thing we are doing with eval function. Like suppose we have a value of 10 plus 20 plus 30. So you can see here that it is a value we are giving in integer, but it is inside a double quote, so it's always take as a string. Eval function is always take as a string. Okay, so let's print this x and check the output. What is the output is coming here? So you can check here that the output is 60. So it's always take a input as a string, but then convert into a requirement of the user. Suppose if we give a true, value. Okay, if we give a true value, then you can check it's print true. Okay, how can we know that it's a boolean? So we just go for the type function, type of x. So you can check when we run it this program, it display it data type is boolean type. Okay, so have you got my point? Suppose we are entering an input. Or something like enter the value. Okay, we have entered the value and check which type is this input. Okay, so we are running the program and wait a minute, sorry, so we have not giving a inbuilt function input and put this, enter the value inside the bracket. Okay, now we can go for the run and enter the value 10 and तो दोस्तों हम चेक कर सकते हैं, हमने वैल्यू एंटर करी 10 और इसका जो इनपुट आया वो इन डाटा टाइप का आया. ठीक है, सेम फॉर हम ट्रू एंटर करते हैं. सपोज ट्रू एंटर करते हैं तो इसका जो टाइप आया वो बूलियन आया. हम एक बार लिस्ट के लिए चेक कर लेते हैं, लिस्ट के लिए लास्ट कर लेते हैं एक बार कि लिस्ट कैसे होता है. 10 एक मिनट 2 5 7 6 क्लोज कर दिया और हमने ये लिस्ट ले लिया दोस्तों. ठीक है, और रन करा देते हैं इसे एक बार, एंटर मार देते हैं. देखो इसका जो बूलियन टाइप है वो है, सॉरी इसका डाटा टाइप है वो क्या है, लिस्ट डाटा टाइप है.
तो ये तो हमारा हो गया एवल फंक्शन। एवल फंक्शन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा एवल फंक्शन क्या करता है। एवल फंक्शन हमारा इनपुट जो होता है वो स्ट्रिंग में लेता है और उसको कन्वर्ट करता है एज पर रिक्वायरमेंट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो दोस्तों ये हमारा एवल फंक्शन के बारे में आपको पता लग गया होगा एवल क्या करता है। ठीक है, नाउ वी कैन चेक कमांड लाइन आर्गुमेंट, है ना। अब हम कमांड लाइन आर्गुमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है। ठीक है, कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है। कमांड लाइन आर्गुमेंट, इसकी डेफिनेशन एक बार मैं बोल देता हूँ। इट इज़ अवेलेबल इन अ सिस मॉड्यूल। जैसे कि आपने देखा था कि स्क्वायर रूट फंक्शन था जो कि मैथ मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल था, वैसे ही दोस्तों argv एक वेरिएबल है जो कि सिस मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल होता है। argv इज नॉट अ array, it is a list, okay, and it is available inside the sys module, okay, sys module like जैसे मैथ मॉड्यूल था वैसे ही सिस भी एक मॉड्यूल है। ठीक है, तो ये उसके अंदर वो होता है। द argument which are passing at the time of execution are called command line argument। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है ना कमांड। जब हम कोई प्रोग्राम को रन करवाते हैं और उस टाइम पे रन कराते टाइम पे हम कोई की वो इनपुट देते हैं तो उसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आपको बेटर क्लियर होगा। ठीक है, सपोज हमारा ये प्रोग्राम है। ठीक है, ये प्रोग्राम आप देख लो। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इंपोर्ट करा लिया है आर्गुमेंट वेरिएबल, इंपोर्ट करा लिया है। ठीक है, फ्रॉम सिस मॉड्यूल से, है ना, और फिर प्रिंट करा देता हूँ द नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट यू वांट टू प्रिंट, नहीं सॉरी, द नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट। ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद है द लिस्ट ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट कितनी है। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है और वो 1 बाय 1 प्रिंट हो जाएगी लूप लगा के। कैसे होगी, हम इसको सेव कर लेते हैं, हेलो के नाम से, hello.py। इस फाइल को हमने पाइथन एक्सटेंशन से सेव कर लिया। ठीक है, डैशबोर्ड पे जाके हम कमांड लाइन ओपन करते हैं और यहाँ से हम रन कराते हैं वो अपना प्रोग्राम hello.py। अब हम जो वैल्यूज दे रहे हैं 10, 20, 30, 40, तो जो ये वैल्यूज दिए हैं ना हमने, इन वैल्यूज को बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट। अब हम एंटर करेंगे। ठीक है दोस्तों, एंटर करा हमने तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा जो हमने प्रोग्राम था वो हमारा रन हो गया। द नंबर ऑफ आर्गुमेंट लाइन इज 5। क्यों दे रहा है, हमने तो 4 ही प्रिंट करा था। 5 इसलिए दे रहा है दोस्तों कि जो हमारे वैल्यू 0 पे जो होता है ना, मतलब जो वैल्यू 0 पे होता है वो हमारा ये भी स्टोर हो जाता है, फाइल नेम भी स्टोर हो जाता है आर्गुमेंट वेरिएबल में। तो फर्स्ट पे ये हो गया 0 पे, 1 पे ये हो गया, 2 पे ये हो गया, 3 पे ये हो गया, 4 पे ये हो गया। कैसे कहना चाह रहा हूँ मैं, एक सपोज दोस्तों ये मेरा ये कमांड आर्गुमेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, hello.py स्टोर हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद मेरे क्या थे वैल्यू 10, 20, 30, 40। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा हो गया कमांड लाइन आर्गुमेंट स्टोर हो गया। ठीक है, सिस्टम में। ठीक है, और उसके बाद जब हम इसको चेक करेंगे ना तो इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों
वो कैसे आएगी, कैसे चेक करेंगे हम? इसकी वैल्यू हम चेक करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है। जैसे हम स्लाइसिंग करते हैं ना, स्लाइस ऑपरेटर के हमें वैल्यू पता करनी होती है, वैसे ही सेम हम इसकी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। सपोज हमने ले लिया ए आर जी वी इक्वल टू जीरो पे हमारा क्या आएगा, सॉरी ये जीरो एंगल था क्या, यहाँ पर आना चाहिए ए आर जी वी, ये हो गया जीरो। यहाँ पर जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो हमारा प्रिंट क्या होगा, ये प्रिंट होगा। ठीक है, जब हम ए आर जी वी वन प्रिंट कराएंगे, जब हम वन प्रिंट कराएंगे तो हमारी वैल्यू प्रिंट की होगी कितनी, 10 की। तो ऐसे ही करके 1 2 3 4 5, मतलब हमारी कितनी कितनी है कमांड लाइन आर्गूमेंट, 5 हो गई। ठीक है, 5 हो गई। द लिस्ट ऑफ कमांड लाइन आर्गूमेंट इज hello.py, फिर 10 20 30 40। ठीक है दोस्तों, वन बाय वन हमने इसे प्रिंट कर दिया, hello.py 10 20 30 40। तो ये होता है हमारा कमांड लाइन आर्गूमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा कमांड लाइन आर्गूमेंट क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको दोस्तों पढ़ना है आउटपुट स्टेटमेंट। व्हाट इज आउटपुट स्टेटमेंट? ठीक है, आउटपुट स्टेटमेंट क्या होता है? वी कैन यूज अ प्रिंट फंक्शन टू डिस्प्ले एन आउटपुट स्टेटमेंट। क्या समझ में आया दोस्तों? हम आउटपुट स्टेटमेंट का कब यूज करते हैं, कैसे करते हैं? जब हम प्रिंट फंक्शन के थ्रू हम आउटपुट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। वी कैन यूज प्रिंट इज अ इनबिल्ट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन टू डिस्प्ले अ आउटपुट। ठीक है दोस्तों, प्रिंट के बारे में तो आपने हर प्रोग्राम में देखा होगा कि प्रिंट का हम कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके कुछ तरीके बता देता हूँ। अगर सिर्फ फॉर्म वन, मतलब इसका एक टाइप है, देख लीजिए। अगर हम सिर्फ विदाउट आर्गूमेंट हम प्रिंट करते हैं तो इट विल जस्ट प्रिंट अ न्यू लाइन, जस्ट प्रिंट अ न्यू लाइन। ठीक है, कैसे कहना चाह रहा हूं मैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। प्रिंट राहुल, ठीक है, और फिर कहते प्रिंट पाइथन। ठीक है, और इसको रन करा के देखते हैं। जब से रन कराएंगे तो क्या होगा, राहुल प्लस पाइथन विदाउट एनी स्पेस ये प्रिंट हो गया। बट हम एक विदाउट आर्गूमेंट एक प्रिंट कराते हैं और फिर देखते हैं इनके बीच में, तो देखो इसके बीच में स्पेस आ गया दोस्तों, स्पेस आ गया ना, तो इट मीन्स विदाउट आर्गूमेंट प्रिंट क्या करता है, एक न्यू लाइन प्रिंट करा देता है, जस्ट अ न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है, एक तो फॉर्म वन ये हो गया। अब फॉर्म टू के लिए क्या करना है दोस्तों, फॉर्म टू देखते हैं। फॉर्म टू क्या होता है, प्रिंट स्ट्रिंग। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं प्रिंट और सेकंड तरीका देखते हैं प्रिंट का। सपोज मुझे ये प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, कॉपी करते हैं इसको, कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, मैं इसको रन कराता हूँ, सिंपल मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि हेलो मेरा क्या कहते हैं इसी लाइन में आए और वर्ल्ड जो है सेकंड लाइन में आए, तो मैं सिंपल क्या कर दूंगा, एक बैकवर्ड स्लैश एन लगा के प्रिंट कराऊंगा। तो ये क्या करता है, ये न्यू लाइन क्रिएट करता है। व्हाट इज दिस डूइंग इज क्रिएटिंग अ न्यू लाइन इन पाइथन। तो देखो हेलो मेरा क्या कहते हैं आ गया है, फिर हेलो के बाद ये स्पेस है, न्यू लाइन में चलाए जाने के बाद ये स्पेस लिया और स्पेस के बाद वर्ल्ड कर दिया। अगर ये स्पेस हटा देंगे तो हमारा हेलो वर्ल्ड न्यू लाइन में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है हमारा, ये हमारा न्यू लाइन इस बैकवर्ड स्लैश न्यू लाइन क्रिएट करता है। ठीक है, अब हमें इसका कुछ और देख लेते हैं। टी, बैकवर्ड्स टी क्या करता है, बैकवर्ड्स टी करता है क्या कहते हैं, ये इस स्पेस दे देता है। वी कैन यूज स्पेस करेक्टर ऑल्सो, हम स्पेस दे देता है, काफ़ी स्पेस आ जाएगा। सपोज मैं पहले विदाउट से करके देखता हूँ जी, सिंपल मेरा हेलो वर्ल्ड, देखो इसमें कितना स्पेस है, वन वर्ड स्पेस है केवल इसमें।
अब ये कितना वर्ड स्पेस क्रिएट कर देगा वो चेक कर लेते हैं। ओ सॉरी, मैंने अभी वो करा ही नहीं है, अब हमने कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कितने वर्ड स्पेस कर देता है। देखो अब इसमें देखो काफ़ी ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो गया है, दिख रहा है ना आपको। तो हम \t क्यों यूज़ करते हैं? फॉर क्रिएटिंग अ एस्केप कैरेक्टर ऑल्सो। ठीक है, और नाउ अब सपोज हमें क्या कहते हैं, हेलो 10 टाइम्स वो करवाना है, प्रिंट कराना है। ठीक है, प्रिंट कराना है हेलो प्लस स्पेस ना, 10 टाइम्स प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, इसे 10 टाइम 10 से इंटू कर देंगे, सिंपल रन करेंगे, हमारे क्या होगा 10 टाइम्स हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है दोस्तों। हम प्लस ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। प्लस ऑपरेटर हमेशा दो स्ट्रिंग के बीच में वर्क करता है, आपको मैंने पहले बताया था इसके बारे में। तो हेलो प्लस 10 हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा आउटपुट स्टेटमेंट। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्या, फ्लो कंट्रोल पढ़ने वाले हैं, मतलब इफ एल्स कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।